नमः सर्वेभ्यः। अद्य यावत् अस्माभिः कारकप्रकरणस्य विविधाः अंशाः पठिताः। तत्र कारकार्थे केचन निमित्ताः भवन्ति। तत्र विभक्तिनिमित्तम्, उपपदनिमित्तं, प्रातिपदिक तथा कर्मप्रवचनीय इति अपि एकं निमित्तं भवति। विभक्तिनिमित्तं किम् अस्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तितं, प्रातिपदिकं किं भवति तस्य विषये एकं स्वतन्त्रं सूत्रं पठितम्। अधुना उपपद इत्यस्य अपि विचारः कृतः। गतकक्षायाम् उपपदविषये अपि अस्माभिः पठितं। स्मरन्ति वा किं किं पठितम्? एक संक्षेपेण उच्यते चेत् अग्रे सरामः। उभयतः सर्वतः इत्यस्य एकमेकं वाक्यम् उक्त्वा अग्रे सरामः। So that upapada dvitiya, that is the one? So I was trying to make a sentence out of that and I couldn't come up with, I just tried something. I can tell you. You want me to tell you? Yes. I said, Hanuman Lankam Sarvatah Sitam Anveshanam Karoti. Lankam Sarvatah Hanuman Sitam Anveshati. हाँ, समीचीनमेव वाक्यं साधु। आम्, लङ्कायाः उभयतः इति षष्ठीयोगे द्वितीया तैः कृता। लङ्कां सर्वतः, लङ्कां परितः इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। इतोपि केनचित् कृतं? वनकुटीरं परितः मृगाणि सन्ति। वनकुटीरं परितः मृगाः सन्ति इति वक्तव्यं वा? मृगाः सन्ति। ओके, समीचीनम्। इतोपि उपरि उपरि, अधो अधः, अध्यदि, धिक् इत्यादयः इतोपि शब्दाः सन्ति। हा, प्रति, तेषां योगे अपि दुर्जनः सज्जनं धिक्, न दुर्जनं धिक् इति वक्तुं शक्यते। दुर्जनं धिक्, सज्जनं धिक् इति न वक्तव्यम्। ओके। देवालयं परितः भक्ताः सन्ति। किं किं किं? देवालयं परितः भक्ताः सन्ति। देवालयं परितः भक्ताः सन्ति, समीचीनम्। एतद् उपपदविभक्ति इति नाम्ना प्रसिद्धम्। यदा कदापि एतेषां पदानाम् उभयतः, सर्वतः, अभितः, परितः इत्यादिकानां शब्दानां प्रयोगः यदा यदा भवति तदा तदा द्वितीया विभक्ति कर्तव्या इति नियमः। तर्हि द्वितीया विभक्त्यर्थे विभक्ति इति एकं निमित्तं दृष्टं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं च निप्सितम् इत्यादिकानि सूत्राणि दृष्टानि। ततः अनन्तरम् उपपदविभक्त्यर्थे sorry, I have to interrupt one. When you keep saying nimitta, vibhakti nimitta, I don't understand what that means. Okay, let me share a slide. I will explain that point again. Here we had seen 5 nimittas to assign karaka. See, here vibhakti pravruttau, when we are using particular vibhakti, right now we are using dvitiya. To use dvitiya, there should be some nimittas. What are they? So karaka is first nimitta. Those sutras you are calling it as nimitta. Yes, kind of. So whenever we want to assign dvitiya vibhakti, there should be karma nimittam. Karma karaka becomes nimitta to use dvitiya. Similarly, there are some words like for dvitiya vibhakti, there should be ubhayatah, paritah,
etc words. If you find this kind of word, you have to use dvitiya vibhakti. That point we have seen. Pratipadika comes under prathama only, so not much regarding this. Sambandha regarding shashti, so these two are not much useful. Okay, thereafter we are going to see karma pravachaniya also, and there are many sutras for dvitiya itself. I am going to show a slide for that. Okay, where is that slide? This many sutras are useful for karma pravachaniya dvitiya. So now I am skipping this part. After studying all karakas, all 6 karakas, I am going to focus on karma pravachaniya separately. Is it fine? Till that we will find what is karta karakam, karma karakam, karana karakam, sampradana, apadana and adhikarana. And then again I have to cover all vartikas which comes under gati buddhi pratyavasana, and this part karma pravachaniya part. Okay, so these sutras are useful for dvitiya vibhakti, karma pravachaniya separate prakarana. We'll see that. Okay, now regarding tritiya, there is going to be one sutra. This is kartrukaranayos tritiya. For that we have to understand what is karta and what is karana. So before that we are going to see 2 sutras. Okay, now understand this concept. तृतीय विभक्त्यर्थे अयम एकः मुख्य प्रकारः भवति स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रम्. स्वतन्त्रः कर्ता तस्य अर्थः अस्ति क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्. भवन्तः क्रियापदं स्मरन्ति वा? क्रियापदस्य अर्थद्वयं भवति, व्यापारः फलञ्च. खलु व्यापारः यथा पचति इति क्रियापदम् आसीत्. पचति इति क्रियापदस्य पचन विक्लिति अनुकूल व्यापारः इति अर्थः अस्माभिः कृतः अस्ति. विक्लिति इति फलम् आसीत्. विक्लिति अनुकूल पचन याः क्रियाः भवन्ति, यथा गैस जलाना, बर्तन रखना, उसमें पानी डालना, इतने सारी जो क्रियाएं होती है उसको बोलते पचन क्रिया. जब तक विक्लिति रूप फल नहीं मिल जाता तब तक होने वाली क्रिया. तो उस क्रिया में, उस व्यापार में जो स्वतंत्र रहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता. सिंपल डेफिनेशन. क्रियायाम नाम व्यापारे स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्. अयम् अर्थः. स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः. अत्र तत्र व्याकरणे एकं वाक्यं प्रसिद्धं, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति. It depends upon कर्तृ विवक्षा, वक्तु विवक्षा. Actually, if I want to make prathama vibhakti of Devadatta, let's make one sentence, pachati. I would say mata odanam pachati. If I intend to make kartrukarakam as mother, I am going to say mata odanam pachati. It totally depends upon me. If I want to change mother into fire, I can say vannihi pachati. Vannihi pachati, and sentence is correct only. Okay, again one more. Mata vannina sthalyam odanam pachati. What is the meaning of this sentence? Mata vannina sthalyam odanam pachati. He is cooking with the help of fire.
She's into cooking rice. the plate. Cooker, yes, Correct. cooker with the help of fire. So here actually Mata was a Kartrukarakam. I intended to make mother as Karta. So I made it. If I want to change into Vannihi Odanam Pachati. So now it totally depends upon me. If I want to make Vanni as Kartrukarakam, I can make that. Vivakshatah Karakani Bhavanti. Even I can make Sthali Pachati. Sthali Odanam Pachati. It looks Cooker. little weird, but yes, there is a Swatantra Prakaranam as Karma Kartru Prakriya. Okay, so it would be Sthali Odanam Pachati. Actually, So what is thali mean? plate. Plate. Patram, Patra Vishesham. स्थालिका इत्युक्ते कुकर न न तथा न पात्रविशेषं स्थाली इत्यस्य सामान्यतया वयम् अर्थं किं कुर्मः पात्रविशेषं प्लेट प्लेट को क्या बोलेंगे और कुकर कुकर भी ले सकते कोई बात नहीं पात्र विशेष है करके कुकर भी ले सकते कुकर ऐसा रखते हैं फिलहाल ठीक है स्थालिका. सो वही इफ आई वांट टू यूज स्थाली एज करण I am going to put it into Tritiya Vibhakti. Sthalya Pachati. I can make Sthali as Karana Karakam. If I want to make as Adhikarana, I am going to change the Vibhakti. Sthalyam Pachati. Why? Vaktu Vivaksha Apekshate. Vivakshatah Karakani Bhavanti. I can make Tritiya, I can make Dvitiya, even I can make Pratama. Sthali Pachati. It totally depends upon me. Okay? Asihi chinatti अथवा asina chinatti. What is the difference? Simple sentence. असिः इत्युक्ते Khadgam. ओके खड्गेन असिः असिना चिनोति हा योग्यं द्वयोः उभयोः योग्यम् एकस्मिन् वाक्ये असिः इति कर्तृपदम् अपरस्मिन् वाक्ये असिना इति करणकारकम् if I want to use asi as kartrikarakam I will make asi chinatti. If I want to change it into karanam I can say asina chinatti. Now what I was intended that kriyayam whatever kriya it might be स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्. कर्ता will be स्वतंत्र. So it depends upon कर्ता. Is it fine? Now kartrukarakam, if it is clear, then next is karanam. What is karanam? Simple definition. Sutram is sadhakatamam karanam. Sadhakatamam karanam. What is the sutrartha? This is karana vid saujna vidhayakam sutram asti. Sutrartha evam kriya siddhau prakushtoparakam karana saujnyam syat. If we want to perform some action, kriya siddhi, if we want to do, for that which is prakrushta upakaranam, that is most useful, that gets karana saujnya. This is karana saujnya vidhayakam sutram. So in performing action, whatever is most upakarakam, that becomes karanam. So that is the definition. In karake, in this adhikara, this sutra continues. Udharanam asti datrena lunati. Lunati, to cut. Sasyam lunati iti vakyam. Sasyam kena lunati iti chet datrena. दात्रम इत्यस्य अर्थः मराठी त्याला विळा म्हणतात. काय म्हणणार त्याला? It is a particular instrument to cut sasyam, grass. I don't know what is the word for that. Cutter, we can say cutter. Datrena lunati. I don't know particular word regarding this.
Okay. Sickle? Huh? It's a sickle, right? It's a semicircular instrument to cut grass. It's called a sickle, huh? Okay, okay. How does it spell? Your I think it's SICKLE if I'm not mistaken. CKL. Sickle. Okay. I will change. Find out the word. Sickle. Datrena lunati. Another sentence is parashuna chinatti. Parashuna chinatti. So here for Chedana Kriya, most useful karakam, upakarakam is parashu. That's how that word gets karana saudnya. Similarly, datra is most useful for cutting action. So that's how it gets karana saudnya. Okay. Now there is a one shanka. In that sutra, sadhaka tamam karanam. Here tamam word they have added. What if we say sadhakam karanam? If we do not use tamam, then what would happen? Regarding this, there is a shanka. And tamap word has translated or another meaning has given as prakrushta upakarakam. If we say only kriya siddhau upakarakam karana saudnyam syat, if we do not use prakrishta word or tamap word, what will happen? That is the shanka, that is the doubt. We are doing karana saudnya. In karana saudnya, if we particularly do not use kriya siddhau prakrishta word in that meaning or tamam word in that sutra, what will happen? Simple doubt. Then they say, if we do not use prakrishta, then that lakshana goes into karaka. What is karaka? Kriya samanvitam karakam. That which helps action to happen. That is called karakam. सारे के सारे कारक क्रिया सिद्धि के लिए हेल्प करते हैं. तो ये लक्षण कहा जाता है. यदि तमप ग्रहणम नहीं करते तो साधकम करणम ऐसा बोलते तो ये अनिष्ट लक्षण होता. उसकी अतिव्याप्ति होती. आपको अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव ये पता है ना थोड़ा सा ना. इसके बारे में थोड़ा न्याय में आता है. मैं उसकी भी एक स्लाइड बनाई, मैंने दिखाता हूँ. 1 मिनट. हाँ, उसके बाद फिर से इस सूत्र पे आएंगे. किमपि लक्षणम यदि कुर्मः लक्ष्यं प्रति लक्षणम आवश्यकं भवति. यदि कश्चन लक्ष्य विषयः वर्तते तस्य चिन्तनं यदि कुर्मः तदा तत्र लक्षणेन वस्तु सिद्धि भवति. तस्य कृते लक्षणं कथं कुर्मः? निर्दुष्ट लक्षणम् आवश्यकं भवति. उदाहरणम्, अहं गां वक्तुम् इच्छामि. If somebody asks what is cow or what is bull, I have to explain that what is bull. So if I do a lakshanam as lakshaikadesha vrittitvam avyapti. What is avyapti? Let's understand, then I will explain the example. Lakshaikadesha avrittitvam. So doing a lakshana, laksha ekadesha avrittitvam avyapti. So not covering that part. यहाँ का कुछ गायब हो गया. मैंने कुछ लक्षण किया, ठीक है, लेकिन वो लक्षण जिसका लक्ष्य, जो लक्ष्य है उसमें जा ही नहीं रहा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूं मैं, उससे क्लियर हो जाएगा. कपिलत्वम गोहो लक्षणम. मैं अभी गाय का लक्षण कर रहा हूं, ठीक है, और गाय का लक्षण मैंने क्या किया? कपिलत्वम, दैट विच इज ब्लैक. जो ब्लैक है वो काऊ है. ऐसा लक्षण करने पर गाय के ऊपर थोड़ा सा लक्षण जाता है, लेकिन ये वाला लक्षण श्वेत जो गाय है उसके ऊपर जाता ही नहीं. श्वेत हो या ताम्र रेड कलर की जो काऊ है उसके ऊपर जाता ही नहीं. तो लक्ष्य एकदेश अवृत्तित्वम, एक जो लक्ष्य है, जैसे कि श्वेत
ऐसे भी गाय होती है, उसके ऊपर ये लक्षण जाता ही नहीं, उसको बोलते हैं अव्याप्ति। जो डिफाइन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लक्षण तो जाता है, लेकिन उसका कुछ एक पार्ट वो कवर नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं अव्याप्ति। हाँ, ये वाला एक। दूसरा है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति अलक्ष्य वृत्तित्वम। अलक्ष्य, जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी ये लक्षण चला जाता है, उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। हमें अभी भैंस डिफाइन नहीं करनी है कि नहीं, हमें सिर्फ गाय डिफाइन करनी है या बैल डिफाइन करना है, और मैंने लक्षण कर दिया श्रृंगित्वम गोहो लक्षणम। श्रृंगित्वम गोत्वम, जिसको जिसको सिंग होते हैं वो क्या है, गाय है। ऐसा लक्षण कर देने पर ये लक्षण कहाँ कहाँ जाएगा, जिन जिन प्राणियों को सिंग है, शुंग है, वो सारे प्राणी क्या हो जाएंगे, गाय होने लग जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अतिव्याप्ति, है ना। जो लक्ष्य है गाय, उसके ऊपर लक्षण जाते हुए किसी और तरह चले जाए, किसी और जगह पे चले जाए, अलक्ष्य वृत्तित्वम, उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। हाँ, महिष्याम अपि अस्य लक्षणस्य प्रवृत्ति भवति। महिषी नाम बफेलो, बफेलो और वॉटएवर दूसरे जितने भी प्राणी हैं शुंगवत्व, उनमें चला जाएगा, इसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। हमने वैसे यही अतिव्याप्ति का भी वहां कनेक्शन हम दिखाने वाले हैं। अगला असंभव लक्ष्य मात्र अवर्तनम असंभव नाम किम, यद लक्ष्य वर्तते तस्य लक्ष्यस्य स्थाने लक्षणस्य प्रवृत्तिर्नेव न भवति। जिसको डिफाइन करना है वहां वो लक्षण पहुंचता ही नहीं, उसको बोलते हैं असंभव। उदाहरण देते हैं, यथा एक शपत्वम गोहो लक्षणम। गाय क्या है, जो एक शपवती है। अभी एक शपत्वम का मतलब होता है मराठी में उसको एक खुर बोलते हैं, फुफ, ऐसा लक्षण। हाँ, तो एक्चुअली गाय को दो दो फुफ होते एक पैर में, है कि नहीं। तो ये लक्षण गाय के ऊपर जा ही नहीं रहा। ऐसा लक्षण करना यदि करते हैं, लक्षण किया, उसको को क्या बोलते हैं, दुष्ट लक्षण बोलते हैं। जो लक्षण लक्ष्य पे जा ही नहीं रहा उसको बोलेंगे दुष्ट लक्षण। ये तीनों लक्षण दुष्ट लक्षण है। इसमें से एक भी वहां प्राप्त हो जाए तो आपका लक्षण पूरा हुआ नहीं है। लक्षण कैसा होना चाहिए, निर्दुष्ट होना चाहिए। ये वाले दोष है, ये दोष वहां नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी जाकर के गोहो एक शपत्वम, ये तो पहुंच नहीं रहा है। ये यदि एक शपत्वम करते हैं, एक शपत्वम किसका किसका रहता है, घोड़े का एक शपत्वम लक्षण रहता है, गर्दभ जो होता है उसका एक शपत्व रहता है, उसके पैर में क्या एक ही खुर बोलते हैं, उसको हुफ बोलते हैं, है ना। तो वो लक्षण उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुए। अभी गाय को डिफाइन करना है या बैल को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे। चार पैर बोलेंगे तो वो भी चार सारे प्राणियों लोगों के होते ही हैं, और क्या डिफाइन कर सकते हैं। कलर डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे कलर, वो सेम सिमिलर कलर रहते हैं। श्रृंग डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे प्राणियों को श्रृंग भी रहते हैं। तो अभी ऐसा लक्षण करना है हमें जहां अव्याप्ति भी न हो, अतिव्याप्ति भी न हो, और असंभव दोष भी वहां न आए। तो ऐसा लक्षण नैयायिक करते हैं शासनादिमत्वम गोत्वम। Cow is that which has dewlap। तो इसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, गलकंबल बोलते हैं, पोड़ी बोलते हैं। पोड़ी जो गाय के नीचे कंठस्थान पे ऐसा एक गललंब क्या बोलते हैं, रोटी का जैसा भाग रहता है ना, उसको बोलते हैं सासनम। तो स्नासनादिमत्वम गोत्वम। अभी ऐसा लक्षण करते हैं तो ये लक्षण न भैंस के ऊपर जाता है, क्योंकि भैंस को कुछ होता ही नहीं, उसको सिर्फ कंठस्थान होता है अच्छे सा, उसको गले लंबा नहीं होता। ये बाकी अश्व के ऊपर भी नहीं जाता, गर्दभ के ऊपर भी नहीं जाता। तो ये लक्षण सिर्फ
गाय पे ही जाता है या बैल पे ही जाता है, तो अभिलक्षण सिद्ध हो गया हमारा। न यहाँ अव्याप्ति होगी, न यहाँ अतिव्याप्ति होगी, न असंभव होगा। शासनादिमत्वम गोत्व लक्षणम अथवा गोहो लक्षणम, इसमें से कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? ये सारा क्लियर हुआ? म्यूट हो आप प्रार्थना जी। हाँ सर, मेरा एक मेरा एक क्वेश्चन है। तो ये निर्दुष्ट लक्षणम, आई अंडरस्टूड देयर आर 3 कंडीशंस जो आपने 3 बताए। अब ये जो हम डेफिनेशन सही दे रहे हैं उसके लिए कुछ टाइटल है या वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट? किन के लिए टाइटल? मतलब आपने 3 डेफिनेशंस दी, वो तीनों गलत थी, राइट? अव्याप्ति ही वी आर मिसिंग समथिंग, अतिव्याप्ति ही वी आर एडिंग समथिंग which is not required, असंभवः we are saying something that is not possible for whatever, like in this case it was cow. Now in the end we ended up defining a cow with the correct quality. So do we have a name for that, like avyapti hi, ativyapti? These are Say that again. three dosha. Can you say that again? Any Sound is this kind of these are 3 doshas. What if there is any dosha comes under lakshanam, that lakshanam becomes dushta lakshanam. correct. Okay, for nirdushta lakshanam this should not be applicable, not avyapti, ativyapti and asambhav. Oh, okay, got it. इसमें से कोई भी वहां नहीं आना चाहिए। जब लक्षण करते हैं तो वहां न अतिव्याप्ति होनी चाहिए, न अव्याप्ति होनी चाहिए, न असंभव होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा पॉइंट क्या था, हमने क्या लक्षण किया? साधक तमम करणम, और तमम इस शब्द का अर्थ किया था प्रकृष्ट उपकारकम, ऐसा किया था। तो केवल उपकारकम करणम ऐसा बोलते तो उपकारक केवल करण नहीं है, सारे के सारे कारक क्रिया के सिद्धि के लिए हेल्प करते, कर्ता भी हेल्प करता है, कर्म भी हेल्प करता है, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये सारे के सारे कारक क्रिया सिद्धि के लिए हेल्प करते हैं। तो केवल इतना लक्षण करते कि प्रकृष्ट उपकारकम करणम, ऐसा करण का यदि डेफिनेशन देते हो तो क्या हो जाता? ये लक्षण कर्ता में, कर्म में, संप्रदान में, अपादान में और अधिकरण में भी उसकी अतिव्याप्ति हो जाती, वहां भी जाने लगता है लक्षण। तो वो निर्दुष्ट करने के लिए उन्होंने एक पद ऐड कर दिया, वो था अरे अभी 10 मिनट ही बाकी है, कहाँ गया वो? साधक तमम, साधक तमम करणम, ऐसा उन्होंने तमम प्रत्यय या प्रकृष्ट शब्द उन्होंने रखा। तमम का अर्थ ही प्रकृष्ट होता है, ठीक है? प्रकृष्ट just like we learn in कर्तुरीप्सित तमम कर्म, वैसे है ना? तो केवलम उपकारम इति उच्यते चेत कारकेषु अतिव्याप्ति भवति। यतो ही क्रियाजनकम कारकम इति उच्यते, तो क्रिया के उत्पत्ति के लिए जो यूजफुल होता है उसको कारक बोलते हैं। ऐसा बोलने पे उपकारकम करणम ऐसा बोलने पे ये सारी अतिव्याप्ति होने लग जाती, तो उन्होंने तमप प्रत्यय ऐड कर दिया जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट। तो लक्षण बन गया साधक तमम करणम, दैट विच इज मोस्ट यूजफुल, दैट विच हेल्प्स अ लॉट टू हैपन क्रिया, दैट विल बी कॉल्ड एज करणम। इतना क्लियर है? अभी हमने कर्तृकारकम देखा, करण कारकम संज्ञाएं देखी, नाम देखी। कर्ता किसको बोलते? जो स्वतंत्र रहता है क्रिया सिद्धि के लिए, उसको कर्ता बोलते। करण किसको बोलते हैं? जो मोस्ट यूजफुल रहता है क्रिया होने के लिए, उसको करण बोलते। अभी इनकी विभक्ति क्या होगी? कर्ता की क्या विभक्ति होगी, करण की क्या विभक्ति होगी, उसके रिलेटेड एक सूत्र आता है। सूत्र है, अरे ये तो देखा हमने ना, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकारकस्य तृतीया भवति, करणकारकस्य अपि तृतीया भवति, किंतु कदा उच्यते अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात्, यदा कर्ता कर्तृपदम अनअभिहितं भवति, उक्तं न भवति, तदा तस्य तृतीया विभक्ति ही भवति। अभी अनभिहित अभिहित एक कंसेप्ट क्या है, जरा
थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। हमने ये देखा था ये टॉपिक पहले। अभिहित मतलब क्या? जब क्रियापद हम यूज करते हैं कोई सा भी, लेट्स टेक पचति। पचति, यहाँ ती प्रत्यय यूज हुआ। वो ती प्रत्यय क्या क्या दिखाता है? ती प्रत्यय पुरुष दिखाता है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इट शोज वचनम। कितना वचन? सिंगुलर। ती सिंगुलर प्रत्यय इज यूज एज प्रथम पुरुष पुरुष एक वचनम। वचनम। सिमिलरली थ्रू दैट ती प्रत्यय कर्ता विल बी अभिहित, उक्त। दैट इज द कंसेप्ट। सिमिलर वे, इफ आई से पच्यते, कर्मणि प्रयोग किया मैंने। अभी पच्यते इस क्रियापद के द्वारा क्या उक्त होता है? कर्ता उक्त होता है या कर्म उक्त होता है? ते प्रत्यय से कर्मणि प्रयोग में कर्म उक्त होता कर्म। है। तो यहाँ पच्यते यदि मैं यूज कर रहा हूं, वो कर्मणि प्रयोग दिखाता है। कर्मणि प्रयोग दिखाते हुए प्रथम पुरुष एक वचन दिखाता है, जैसे कि बालिकया अथवा बालकेन, पाचकेन ओदनम पच्यते। तो ओदनम ये कर्म उन्होंने दिखाया। तो कर्म पच्यते क्रिया के द्वारा कर्म क्या है? अभिहित है। पचति क्रिया के द्वारा कर्ता अभिहित है। अभिहित जब रहता है तब उसकी प्रथमा हो जाएगी, ठीक है। जब कर्ता अभिहित नहीं रहेगा तब उस कर्ता की कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया होगी। तो क्रियापद के द्वारा कुछ प्रत्यय आते हैं, उनके द्वारा वो अभिहित नहीं होना चाहिए। जब अभिहित नहीं होगा, अनभिहित होगा, तब उसकी क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। वह एक पॉइंट। एम आई राइट? कर्म अनभिहित होता है तो कर्ता की द्वितीया हो जाती है। ना ना ना, कर्म जब अनभिहित रहता है तब कर्म की द्वितीया होती है। कर्म की द्वितीया, हाँ। यहाँ कर्म कर्ता की तृतीया। हाँ, कर्म कर्ता की तृतीया हो जाती है जी। अभी वही पॉइंट जरा। तो ये सूत्र को दो तरीके से जानना है। पहला, अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात्, ये हो गया पहला पॉइंट। करणे तृतीया स्यात्, ये दूसरा पॉइंट। करण कारकम में तृतीया हो जाती है। सिंपल सिंपल, ठीक है। रामेण बाणेन हतः वाली, अत्र इस एग्जाम्पल में उन्होंने दोनों के दोनों कर्ता कारकम भी दे दिया और करणम भी दे दिया। उसको थोड़ा सेपरेट करता हूं मैं। अनभिहित इसके अधिकार में सूत्र प्रवृत्त होता है। रामेण बाली हतः, अभी सेपरेट सेपरेट वाक्य देखते हैं। रामेण बाली हतः, बाली हतः। तो हतः ये जो प्रयोग है, त प्रत्यय है, उस त प्रत्यय के द्वारा कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया गया? वाली हतः। तो उस तह प्रत्यय से कौन उक्त हो गया? वाली उक्त हो गया, है ना। और अनुक्त कौन है? यहाँ कर्ता है। ये भी कर्मणि प्रयोग है। क्त प्रत्यय का उपयोग हमेशा कर्मणि में होता है कि नहीं। क्तवतु प्रत्यय हतवान, उसका प्रयोग कर्तरी में होता है। रामः वालिम वालिनम हतवान, हो गया कर्तरी वाक्य। कर्मणि वाक्य बनता है रामेण वाली हतः अथवा बाली हतः। हतः इस प्रत्यय के द्वारा कर्ता अनुक्त है। हत प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त होता है, कर्ता अनुक्त होता है। तो ये अनुक्त होने के कारण, अनभिहित होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो रामेण इति कर्तृकारकम आसीत्, तद अनभिहितम आसीत् इति कृत्वा कर्तृकरणयोस् तृतीया इति सूत्रेण तस्य तृतीया विभक्ति ही भवति इति अर्थः। व्हाट अबाउट करणम? करणे तु तृतीया एव, करणकारके तृतीया विभक्ति भवति। बाणेन बाली हतः। तो यहाँ प्रकृष्ट हनन क्रिया के लिए प्रकृष्ट उपकारक कौन था? तो बाण। इसलिए बाण इस पद की क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। करणे तृतीया भवति। इतना स्पष्ट है? ठीक है। So I just want to clarify anabhihit and abhihit, just in my own understanding what I thought. जी So it depends on the kriya pada. Whatever kriya pada indicates,
that becomes abhihita, and that gets the prathama vibhakti. No. When it is abhihita, when karta is abhihita, then it is going to get prathama vibhakti. When karma is abhihita, karma is going to get prathama vibhakti. When karta is not abhihita, it is going to get tritiya by this sutra. When karma is not abhihita, then it is going to get dvitiya by karmani dvitiya. Okay. Is there any doubt regarding this? Say that karma dvitiya vibhakti one more time. Just now you said when karta is abhihita, then karma will get dvitiya vibhakti. No, tathana vaktavyam. We have to focus on particular. Like if karta is ukta, it is going to get Prathama. Then we do not think about karma, etc. When we are thinking about karta, we have to say whether that is abhihita or not. If it is abhihita, it is going to get prathama. That is fixed. तो वहां कर्म रहे न रहे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना. तो जब कर्ता अनभिहित रहता है, अनुक्त रहता है, तब जाकर के उसकी तृतीया ही होगी. वो इस सूत्र से क्लियर होता है. ठीक है जी, इतना क्लियर. इसी सूत्र में सिद्धांत कौमुदी में एक वार्तिक आता है, प्रकृता दिव्य उपसंख्यानम. एक्चुअली ये उपपद विभक्ति का टॉपिक है. हाँ, उपपद तृतीया का. तो हम जब उपपद का विचार करेंगे तब ये वाला सूत्र, ये वाला वार्तिक फिर से देखेंगे. ठीक है. आगे का 1 ही मिनट बचा है, तो एक सूत्र हो सके तो दिवः कर्म च. दिव ऐसा धातु आता है. दिवस साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् तथा करण संज्ञम. दिव ऐसा एक क्रियापद आता है, उसका अर्थ होता है खेलना, ऐसा भी एक अर्थ होता है. तो उसके साथ साथ जो साधक तमम कारकम रहता है ना, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी. कर्म संज्ञा होगी तो उसमें ऑब्वियसली द्वितीय विभक्ति आएगी. जब कर्म संज्ञा विकल्प से होती है, कर्म संज्ञा जब नहीं होगी तो साधक तमम होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय आ जाएगी. उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी. दिवः साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्. तो इस सूत्र ने क्या विहित किया है? कर्म संज्ञा विहित की है. और जब चकार लगा देने से उसकी करण संज्ञा भी होगी, तो वाक्य क्या बनेगा? अक्षयैः दिव्यति. ही प्लेज थ्रू डाइस